नमस्ते, सत श्री अकाल बच्चों। पिछले वीडियो में पता नहीं कुछ टेक्निकल इश्यू आ गई थी, ऑटोमेटिक वीडियो क्लोज हो गई थी। तो अब ये वीडियो इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज से फिर बना रहा हूँ मैं। अब ये देखिए शुरू से पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ाया था भूल जाए। Immediate adverse effect of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, vandalism, and violence. Excessive doses of drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure, or cerebral hemorrhage. The combination of drugs or their intakes along with the alcohol generally result in overdosing and even death. The most common warning signs of drugs and alcohol abuse among the youth include drop in academic performance, unexplained with the absence from school or college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive, rebellious behavior, deteriorating with the relationship with family and friend, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habit, fluctuation in weight, appetite, etc. ये इसमें ये बता रहा है कि बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट है क्या चीज़ के, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ के, जो मैनिफेस्टेड है बहुत सारे रेगुलस बिहेवियर में, जैसे वेंडलिज्म और वायलेंस। जब हम लोग ड्रग्स का होता है एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो हम लोग को तक कॉमा में भी जा सकते हैं, डेथ भी हो सकता है, और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, और हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और सेरिब्रल हेमरेज भी हो सकता है। और बहुत सारे तो ड्रग्स के कॉम्बिनेशन का हम लोग इंटेक करते हैं अल्कोहल के साथ, जिसके साथ हम लोग को बार बार तो ओवरडोजिंग का मन करता है, जिस कारण हम लोग को ये नहीं पता है कि हम लोग का डेथ भी हो सकता है, और हम लोग इसी कारण से एकेडमिक परफॉर्मेंस घटने लगते हैं। कोई बिना किसी रीज़न के हम लोग स्कूल से एब्सेंट करने लगते हैं, किसी भी होता है चीज़ में हम लोग इंटरेस्ट घटने लगता है, हम लोग डिप्रेशन रहने लगते हैं, एग्रेसिव रहने लगते हैं, हम लोग का जो नेचर होता है वो रिबेलियस हो जाता है, यानी कि होता है झगड़ालू नेचर हो जाता है। वो फिर हम लोग का बहुत सारे चीज़ों में इंटरेस्ट घट जाते हैं, फिर हम लोग का स्लीपिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, सब चीज़ में हम लोग का होता है चेंजेस आ जाता है। ठीक है। और ये फिर सेकेंड जो पैराग्राफ है इसका, इसमें ये बोल रहा है, देयर में इवन बी सम फार रीचिंग इम्प्लीफिकेशन ऑफ ड्रग्स। If an abuser unable to get money to buy drugs, he or she may होता है forced to steals. The adverse effects are just not restricted to the other person who is using drugs or alcohol. At times, a drugs and alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress to his या her entire family and friends. अगर कोई भी एक आदमी अगर बताए उसको रुपया नहीं मिल रहा है ड्रग्स या फिर अल्कोहल ख़रीदने के लिए, और उसको तलब जग चुकी है, या तो वो लड़की हो या फिर लड़का हो, तो वो उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो कहीं से चोरी करेगा, और उसका होता है बहुत ही ज़्यादा होता है इफेक्ट पड़ेगा। और पर्सन जो होता है यूज कर रहा है ड्रग्स को एट द टाइम्स ड्रग्स एंड अल्कोहल, उससे कारण के बहुत सारे मेंटल और फाइनेंशियल और डिस्ट्रेस आएंगे उनके लाइफ में, और उनके इंटायर फैमिली या फिर होता है फ्रेंड्स पे भी ये सब इफेक्ट आएगा उनके सिर्फ ड्रग्स और अल्कोहल लेने से। Those who take drugs intravenously, direct injection into the vein using needle syringe, are much more likely to acquire serious infectious like agents, AIDS, hepatitis B. The virus which are responsible for this disease are transferred from one person to another person by sharing of infected needles and syringes. Both AIDS and hepatitis B infectious are chronic infection and ultimately fatal. Both can be transmitted through sexual contact or infected with blood. The use of alcohol during adolescence may also have the long-term effect. It could lead to the heavy drinking in the adulthood, the chronic use of drugs and alcohol, and damage nervous system and liver cirrhosis. The use of drugs and alcohol during the pregnancy is also known to adversely affect the fetus. Another misuse of drugs is what certain sportsmen to use drugs to enhance their performance. They misuse the drugs. They misuse narcotic analgesics, anabolic steroid, diuretics, and certain hormones in a sports person to increase muscle strength
and bulk and promote with the aggressiveness as a result increase athletics performance. The side effect of the use of anabolic steroids in the female include the masculinization features like males, increased aggressiveness, mood swing, depression, abnormal menstrual cycles, excessive hair growth on face and bodies, enlargement of clitoris, depending deepening of eyes. In males, it include acne, increased aggressiveness, mood swing, depression, reduction in size of testicles, decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunction. Breast enlargement होता है, premature होता है baldness, enlargement of the prostate होता है gland. This effect may be होता है facial and body acne. And premature होता है closure of the growth center of the long bones में होता है result in होता है stunted growth. ऐसा आदमी जो होता है ड्रग्स लेता है इंटरनेसली, यानी इधर डायरेक्ट होता है इंजेक्शन होता है, लेता है ड्रग्स लेता है सीधे होता है नस में, उसको बहुत ही ज़्यादा होता है सीरियस होता है बीमारी हो सकता है, जैसा कि एड्स हो सकते हैं, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, बहुत सारे। और वो बहुत सारे होता है डिजीज़ के लिए होता है बहुत ही होता है मतलब घातक बीमारियां हो सकती है जो इसको कंज्यूम करे, और वो एक से दूसरे आदमी को जिसके साथ वो होता है सेक्स कर रहा है उसको भी वो होता है ट्रांसमिट करेगा। इसी कारण से एड्स और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो होते हैं ये होता है क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं, और ये होता है फैटल भी होते हैं। और ये दोनों जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं क्या चीज़ से, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से और इन्फेक्टेड ब्लड से। जब हम लोग यूज़ करते हैं अल्कोहल का ड्यूरिंग एडोलसेंस, जब हम लोग एडोलसेंस में जब हम लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो इसका होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। इसके कारण होता है हैवी ड्रिंकिंग होता है हो सकता है एडल्टहुड में, और इसके कारण बहुत सारे होता है क्रोनिक होते हैं जब हम लोग होता है एक्सेस यूज़ करने लगते हैं होता है ड्रग्स का, तो हमारा नर्वस सिस्टम या फिर होता है लीवर डैमेज होता है जिसको हम लोग होता है किरोसिस बोलते हैं। और अगर बताए कोई आदमी ड्रग्स या फिर अल्कोहल का यूज़ कर रहा है जब वो होता है प्रेगनेंसी में है, वो फिर तब उसके बच्चे पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और दूसरा मिसयूज़ जो है ड्रग्स का, कि सर्टेन स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो अपने परफॉर्मेंस को होता बढ़ाने के लिए वो लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है दे मिसयूज़ नार्कोटिक एनाल्जेसिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज मसल्स स्ट्रेंथ। और वो होता बहुत ही गलत कर रहे हैं, और वो होता है एक एडवर्सली मतलब एक बुरे तरीके से वो अपने मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। और प्रोमोट होता है एग्रेसिवनेस, और उनके अंदर मतलब कि क्या चीज़ बोले एग्रेसिवनेस को हम लोग क्या बोले मतलब उत्साहित होने के लिए वो ये सब चीज़ें करते हैं कि एनर्जेटिक रहेंगे और वो लोग की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। बट वो साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं इसका एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का फीमेल में उसमें मैस्कुलेशन हो जाता है। मैस्कुलेशन में होता है जो होते हैं फीमेल में होता है मेल लाइक होता है फीचर्स जो होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं। कैसे फीचर्स अपीयर होने लगते हैं, तो मेल लाइक फीचर्स अपीयर होने लगते हैं। उनके अंदर भी होता है वही जागरूकता बढ़ जाती है। फिर उनकी होता है जो मूड होती है वो होता है स्विंग बदलने लगती है, फिर वो भी डिप्रेशन में हो जाती है। और जो होता है नॉर्मल जो पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 टू होता है 32 डेज़ के बीच में हो ही जाती है, तो वो उनकी जो होता है पीरियड होती है वो फिर चेंज होने लगती है। फिर उनके मतलब कि उनको होता है फेस पे बहुत सारी बालें आने लगती है, बॉडी पे बहुत ही एक्सेसिव होता है आने लगती है, ठीक है। और उनमें होता है क्लिटोरिस होता है उसका होता है साइज बढ़ने लगता है। फिर उनके जो साउंड होती है वो होता है हार्श होने लगती है जैसे हम लोग की साउंड होती है। और मेल में क्या क्या होता है, तो मेल में तो एक्नी आने लगता है, इसमें भी तो जागरूकता बढ़ जाती है और मूड बदलने लगता है, और ये डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं। और इसके जो टेस्टिस के जो साइज होते हैं वो छोटे होने लगते हैं, और इस स्पर्म प्रोडक्शन भी छोटे होने लगते हैं। और स्पर्म प्रोडक्शन छोटे होने लगते हैं मतलब कम होने लगते हैं, तो फिर बच्चे प्रोड्यूस करने में बहुत दिक्कत आती है। और इनके जो किडनी के जो होता है पोटेंशियल होता है वो घटने लगता है, लीवर में होता है डिसफंक्शन हो जाते हैं। फिर ये लोग में होता है ब्रिस्ट आने लगता है, मतलब ब्रिस्ट का इनलार्जमेंट होने लगता है, और वो होता है बहुत पहले ही होता है गंजे होने लगते हैं। फिर उनके प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होने लगता है। और ये इफ़ेक्ट ये नहीं होता है एक बार यूज़ करने से आता है, ये इफ़ेक्ट तभी आता है जब कोई आदमी उसको होता है बार बार यूज कर रहा है, जब उसको क्या कर रहा है बार बार यूज कर रहा है, तभी ये इफ़ेक्ट आते हैं, तभी ये इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तभी ये इफ़ेक्ट आते हैं।
और फिर होता है वही फेशियल हेयर के ज़्यादा होने लगते हैं, ये सब तो कॉमन प्रॉब्लम है। प्री मेच्योर ऑफ दी होता है ग्रोथ सेंटर्स में जल्दी जल्दी, फिर होता है लॉन्ग बोन्स का होता है रिजल्ट, फिर लॉन्ग बोन्स होने लगते हैं। बट इससे बचने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। The old age of prevention is better than cure hold true here also. It is also true that habits such as smoking, taking drugs or alcohols are more likely to be taken up at the young age. ये ज़्यादा जितना भी हम लोग अल्कोहल या फिर ड्रग्स ये सब जितने भी बच्चे लोग ले रहे हैं, ये ज़्यादातर पता है आजकल के एडोलसेंस पीरियड में ही होता है। It is best to identify the situation which that may push an adolescent toward the use of drugs and alcohol use and to take remedial measure as well as in time. और हम लोग को पहले ये पता करना चाहिए आखिर वो क्या कारण है कि वो बच्चा होता है ड्रग्स ले रहा है या फिर अल्कोहल ले रहा है, और उसको जो कारण हो उसको अच्छे तरीके से मेडिकल होता है प्रिस्क्रिप्शन से उसको जल्द से जल्द होता है कोई अच्छे होता है डॉक्टर्स या फिर होता है खुद से उसको अच्छे से मोटिवेट करके उसको वो आदत होता है छुड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इन दिस बताए रिगार्ड और टाइम के अंदर अब ना कि अब वो बच्चा ज़्यादा ड्रग्स लेने लगा तो आप कुछ भी कर लो वो नहीं छोड़ेगा। इन दिस रिगार्ड द पेरेंट टीचर हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसे होता कंडीशन में पेरेंट्स और टीचर का बहुत ही स्पेशल योगदान होता है और फ्रेंड्स का भी बहुत ही स्पेशल योगदान होता है, समझे ना। अब NCERT नहीं लिखा है बट आप लोग भी अपने दोस्त कोई करते होंगे तो उनको होता है समझाइए। Parent that combined with high level of the nurturance and consistent discipline has also associated with lower risks of substance, alcohol, drugs and tobacco abuse. और पेरेंट्स जो होते हैं अगर उनके पास हाई लेवल ऑफ द नर्चरेंस अगर उनको दिए होंगे और डिसिप्लिन दिए होंगे तो वो उसमें बहुत ही कम चांस है कि वो ये सब अल्कोहल ये सब का होता है यूज़ करें। और बाकी जो पेरेंट्स एकदम किसी आदमी को फ्रीडमली छोड़ते हैं, जितना रुपया मांगा उतना रुपया दे दिए तभी वो बच्चा होता है ऐसा काम करता है। सम ऑफ द मेजर mentioned here would be particularly useful for prevention and controls of alcohol and drug abuse among adolescents. हम बात करते हैं अवॉइडिंग अंडर undue peer pressure. Every child has his or her own choice and personalities, which should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limit, be it studies, sports and other activities. अब बच्चे के ऊपर बहुत ही पेरेंट्स गार्जियन जो होते हैं वो प्रेशर डाल देते हैं, नहीं भाई तुमको टॉप करना है, तुम टॉप काहे नहीं कर रहा है, या फिर उसको जाना है स्पोर्ट्स में उसके पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती डाल देते हैं, नहीं भाई तुमको पढ़ना ही है, पढ़ के तुमको डॉक्टर ही बनना है या फिर इंजीनियर ही बनना है या फिर आर्मी ही बनना है। तब वो बच्चा होता है वैसे होता है प्रेशर में आके वो होता है ड्रग्स या फिर अल्कोहल लेना चालू कर देता है। तो ये ऐसा काम कृपया करके कोई पेरेंट्स ना करें। Education and counseling him or her to face problems and stresses and to accept the disappointment and failures as a part of life. It would be worthwhile to channelize the child energy into healthy pursuits like sports, reading, music, yoga and other extracurricular activities. और एजुकेशन काउंसलिंग में तो उनको तो ये उसमें भी तो पेरेंट्स लोगों को मदद करना चाहिए या फिर टीचर को मदद करना चाहिए कि क्या चीज़ वो तो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है कि उसको ऐसे होता कम नंबर आ रही है, तो वहाँ पे अगर वो पेरेंट्स या फिर होता है टीचर्स उनकी तो हेल्प नहीं करेंगे तो वो बच्चा वो स्ट्रेस में अगर ड्रग्स एंड अल्कोहल लेने ही लगेगा। तो इस कारण से होता है इस पर होता है ध्यान देना चाहिए। अगर वो बच्चा होता है सपोज होता है बार बार फेल कर रहा है तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगा और उसका वो कुछ गलत स्टेप भी उठा सकते हैं जैसे ड्रग्स एंड अल्कोहल कंज्यूम करने लगेंगे। तो इस भी कंडीशन में होता है बच्चे लोगों के ऊपर होता है पेरेंट्स और टीचर को होता है ध्यान देना चाहिए। और अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब कुछ भी भी करना सब चाहते हैं, मतलब स्पोर्ट्स सब खेलना चाहते हैं तो उनको ऐसी कोई प्रेशर नहीं भाई आप सिर्फ यही करो। पेरेंट्स लोग को मोटिवेट करना चाहिए, हाँ भाई पढ़ो भी साथ में खेलो भी, खेलना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो एक प्रकार की एक्सरसाइज ही होती है। Seeking help from parents and peers. Help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately. Help may even be sought from close and trusted friends beside getting proper advice to sort out their problem. And this would help to vent their feeling of anxiety and guilt. और अगर कोई बच्चे ही
कोई दिक्कत में है, डिप्रेस्ड है, या फिर होता है एग्ज़ाम में कम नंबर आ रही है, तो उनको होता है पेरेंट्स से मदद लेना चाहिए। या फिर कोई अच्छे होता है आसपास पेरेंट्स से नहीं ले पा रहे तो फ्रेंड्स से बोलो, फ्रेंड्स से मदद बोलो, लेकिन मदद लो, मदद लेना अच्छी बात होती है। नहीं तो और अगर आप कोई गलत स्टेप उठा रहे हो, ड्रग्स एंड अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ी घातक चीज़ है। तो इसलिए ये काम को कृपया करके ना करें प्लीज़। Looking for danger sign, alert parent and teacher need to be looked for and identify the danger sign discussed above. Even friends, if they find some using with the drugs, should not hesitate to bring this to the notice to parents or teacher. In the best interest of the person, appropriate measure would then be required to diagnose the malady and underlying causes. This would help in initiating with the proper remedial steps or treatment. अगर कोई फ्रेंड्स अगर किसी होता बच्चे को जो अपने होता फ्रेंड्स को देख रहा है कि वो होता ड्रग्स ले रहा है या फिर अल्कोहल ले रहा है, तो उसमें ये नहीं करना चाहिए अरे भाई वो ले रहा है मैं तो नहीं ले रहा हूँ ना, तो उसको वैसा ही अकेला छोड़ देने के लिए उसके पेरेंट्स से आके बोलिए, उसके या फिर होता टीचर से आके बोलिए, फिर आप उससे उस बच्चे से प्रॉब्लम जानने की कोशिश कीजिए। आखिर वो बच्चा क्या चीज़ के प्रेशर में है कि इसको कंज्यूम करना चालू किया या फिर होता मौज मस्ती में चालू किया। तो आप इस चीज़ के बारे में होता है जब तक उनका डाटा नहीं लेंगे तब तक आप उसको होता है फ्रेंड्स आप कहलाएंगे ही नहीं। फ्रेंड्स कहलाने के लिए आपको अच्छे तरीके से उस बच्चे की होता है हेल्प करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी, समझे। Seeking professional and medical help, a lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitation programs to help individuals who have unfortunately got in the quagmire of drugs, alcohol abuse. With such help, the affected individual with sufficient effort and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal and healthy life. सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प में क्या बोला है, अगर मतलब एक लॉट ऑफ द हेल्प चाहिए जो अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ हाईली होता है क्वालिफाइड होता है साइकोलॉजिस्ट के होता है फॉर्म में, या फिर आजकल बहुत सारे डॉक्टर हैं जिसको हम लोग होते हैं साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, तो वो लोग से होते जाके आप हेल्प लो। अगर आप ये पेरेंट्स या फिर कोई फ्रेंड्स से शेयर नहीं कर पा रहे हो तो वो लोग से जाके हेल्प लो, या फिर पेरेंट्स जान जाते हैं तो पेरेंट्स इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं तो वो लोग से जाके हेल्प लीजिए और वो लोग आपको तो मदद करेंगे और वो आप लोगों को जो तरीका बताएंगे उसको आप अपनाना स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं कि वो आपको कोई टैबलेट देंगे, कैप्सूल देंगे, आप ये खाओ और ये एडिक्शन छूट जाएगी, वो नहीं देंगे। आखिर आप जो टैबलेट या फिर कैप्सूल जो कंज्यूम करते हो वो ड्रग्स होती है, बट जो ड्रग्स ये लोग कंज्यूम करते हैं वो नारकोटिक्स होती है, वो बहुत ही घटिया चीज़ होती है। और हम लोग भी आजकल जो मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, बुखार हुआ पैरासीटामोल खा लिए या फिर कोई भी, तो वो सारी ड्रग्स ही होती है, ठीक है। इसके लिए जाके वो लोग से होता है एडवाइस लीजिए। ये समरी पढ़ना बहुत कंपलसरी है, ठीक है, तो मैं इसको एकदम लाइन बाय लाइन में पढ़ाता हूँ। हेल्थ इज़ नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, हेल्थ का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ ही नहीं है। इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग। इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी फिजिकल, मेंटल या फिर सोशल या फिर फिजियोलॉजिकल वेल होना चाहिए। डिजीज़ जैसा कि टाइफाइड, कोलेरा, निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, मलेरिया एंड अदर आर द मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस टू ह्यूमन बींग्स। ऐसा डिजीज़ जो होता है टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, फंगल इन्फेक्शन में होता स्किन का हो गया, फिर मलेरिया हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है ये होता है ह्यूमन को बहुत ही दिक्कतें में डालती हैं। वेक्टर डिजीज जैसे मलेरिया होते हैं, स्पेशली होता है इसको होता है कॉस्ट किया जाता है प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम के जरिए। इफ़ नॉट ट्रीटेड में प्रूव होता है फैटल। अगर किसी को मलेरिया हो गया जो होता है प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम वाला हुआ है तो उसको जल्द से जल्द ट्रीटेड करा दिए, नहीं तो वो होता बहुत ही घातक बन सकता है। Beside personal with the cleanliness and hygiene, public health measures like with the proper disposal of waste, decontamination of drinking water, controls of vectors like mosquitoes and immunization are very helpful in preventing this disease। और अच्छे तरीके से सोसाइटी साफ रखिए, आसपास की जो स्टैगनेंट वाटर है उसको हर समय साफ करते रहिए, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ आपको कभी नहीं होगी। अच्छे तरीके से अपने आसपास की होता साफ सफाई की ध्यान रखिए। Our immune system play a major role in preventing this disease when we are exposed to disease causing one। और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है हम लोग को इससे बचाने के लिए।
The innate deficiency of our body, like skin, mucosa, membrane, antimicrobial substance present in our tree saliva, and phagocytic cell help to block the entry or to our body. इनेट इम्यूनिटी में होता है बहुत सारी चीज़ होते हैं, स्किन होते हैं जिसको हम लोग स्ट्रेटम कॉर्निया म्यूकस होते हैं, या फिर उसका अंदर माइक्रोफेजेज होते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये सब बहुत सारे होते हैं चीज़ें हैं जो हम लोग को के बॉडीज़ को बचाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग को बॉडी में एंटर नहीं होने देता है। If the pathogen succeed in gaining entry to our bodies, specific antibodies, humoral antibodies, इम्यून रिस्पॉन्स पता है, एंटीबॉडीज़ या फिर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स पता है एक्टिवेट हो जाते हैं जो उस पैथोजेंस को मार देते हैं। इम्यून सिस्टम हैज़ अ मेमोरी, इम्यून सिस्टम के पास एक मेमोरी होता है जो होता है कभी भी एक पैथोजन, जैसे हम लोगों ने प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ा था और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ा था, वैसे ही यहाँ बात करता है। On subsequent exposure to same pathogens, the immune response is rapid and more intense। और अगर बता सब्सिक्वेंट अगर इसको एक्सपोजर करें हम लोग किसी भी सेम का पैथोजन का, तो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है, मोस्ट होता है, इंटेंसिव होता है। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन अफोर्डेबल, और इसको बचने के लिए हम लोग मतलब वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन का यूज करते हैं। Among other disease, एड्स एंड मतलब कैंसर किल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड। एड्स और जो कैंसर होता है बहुत सारे होते हैं इंडिविजुअल को मार रहा है पूरे होता है दुनिया में। AIDS caused by the human immune deficiency virus is fatal but can be prevented if certain precautions are taken। HIV से हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग कुछ ऐसे होता है बहुत ही तेज़ी में फैल रही है, लेकिन हम लोग इससे बच सकते हैं अगर हम लोग कुछ प्रिवेंशन को अपना ले तो। मैनी कैंसर आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड अप्रोप्रिएट विद थेरेपेटिक्स द मेजर्स आर टेकन। बहुत सारे होते हैं कैंसर जो होते हैं उसको होता है वो क्यूरेबल होते हैं अगर वो जो बहुत जल्दी होता है डिटेक्ट लिए गए तो। ऑफ लेट ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज अमंग द यूथ एंड एडोलसेंस इज बिकमिंग अनदर कॉज ऑफ कंसर्न। तो ये ड्रग्स एंड एल्कोहल जो होते हैं आजकल के यूथ में होता है बहुत ही बड़ा कंसर्न बन चुका है। किसी भी आदमी को होता है कंजप्शन ये सब ड्रग्स ये सब का, ठीक है। Because of the addictive nature of alcohol and drugs, they perceive benefit like reforms from stress. Many try taking this in face of peer pressure, examination related and competition related stress। और बहुत सारी ये होता है कंपटीशन में पढ़ाई में उनको स्ट्रेस होता है या फिर होता है उनके ऊपर प्रेशर होता है, तो ये सब स्टेप्स होता है ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं और ये लेते लेते वो एडिक्टेड हो जाते हैं इसके। एजुकेशन अबाउट देयर हार्मफुल बताया, एजुकेशन जो होता है इसके होता है हार्मफुल इफेक्ट के बारे में। काउंसलिंग एंड सीकिंग इमीडिएट होता है प्रोफेशनल काउंसलिंग हो या फिर होता है सीकिंग हेल्प करना चाहिए, किसी से भी होता है हेल्प लेना चाहिए या फिर होता है किसी से काउंसलिंग करना चाहिए कि मुझे ये आदत हो गई, मैं इससे होता है कैसे मैं होता है ट्रीट करूँ अपने आप को। मेडिकल हेल्प टोटली होता है रिलीव दी होता है इंडिविजुअल फ्रॉम डिसेबल, और मेडिकल हेल्प जो होते हैं इसको होता है टोटली होता है हेल्प करता है इस ड्रग्स एंड एल्कोहल से बचने के लिए। मेडिकल्स में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, ये लोग हेल्प करते हैं जो आदमी ड्रग्स एंड एल्कोहल यूज़ होते हैं उससे बचने के लिए, ठीक है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कंप्लीट हो गई। इसकी कितनी लेक्चर अपलोड हो गई? फर्स्ट तो अपलोड हुई थी नॉर्मल, फिर दूसरा हुई थी अपलोड इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, और उसके बाद में थर्ड में हुई थी अपलोड एड्स की, फोर्थ में कैंसर, फिफ्थ में इसी का ड्रग्स एंड अल्कोहल का आधा पार्ट, और आधा पार्ट इस वीडियो में हो गई, ठीक है। तो आज ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आज यहीं ख़त्म होता है। आप लोग एक्सरसाइज लगा लो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।